Hi, in this video, I'm going to discuss a question from DSC 2012, which is called swap retain game. Okay. The question is that consider the following two-player game. Okay. The players simultaneously draw one sample from a continuous random variable X, which follows uniform distribution from 0 to 100. Okay. So X follows uniform 0 to 100. After observing the value of her own sample, which is private information, that is opponent does not observe it. So यहाँ पर दो players हैं and both are taking out one value from this uniform distribution. ठीक है, let me call it V1 for player 1 and V2 for player 2. तो V1 कितना है? It is unknown to player 2 and the value of V2 is unknown to player 1. They cannot observe each other's value that they have drawn from this uniform distribution. Okay. Now, players simultaneously and independently choose one of the following. Okay. They have two options. One of them is swap and other one is retain. Okay. तो दो ऑप्शंस है swap और retain. Okay. So if both the players choose swap, then they exchange their initially drawn numbers. Otherwise, if at least one of the persons chooses retain, both of them retain their numbers. ठीक है? So remember, एक के पास है V1, दूसरे के पास है V2, and they are gonna choose swap and retain. Okay? तो अगर दोनों ने swap choose कर लिया, वो exchange कर लेंगे. Otherwise, they will retain it. Okay? So this is the situation. अगर दोनों ने swap कर लिया, then instead of V1, now player 1 will get V2. So उसकी utility या उसकी जो monetary value जो उसे मिल रही है, he will get V2. अगर दोनों ने swap के लिए agree कर दिया तो. Otherwise, अगर एक ने भी retain कर लिया, then they will get their initially drawn number. Okay, and same thing goes for player 2. दोनों ने swap कर लिया तो अब उसे V2 की जगह मिलेगा V1. Otherwise, he will get V2. Okay, so let's see this in this table. If both of them swap, then player 1 will get V2 and player 2 will get V1. और किसी एक ने भी retain कर लिया, so like here player 1 is swapping and player 2 is retaining, so both of them will get their initially drawn number. Okay, similarly here also both of them will get their initially drawn number. और जब दोनों retain कर रहे हैं, obviously their value that they will receive remains the same. Okay, now the question is, find the probability that players will exchange their initially drawn numbers. तो दोनों स्वैप करेंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब होता क्या है, स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअस में जब चीजें देखते हैं, फॉर एग्जांपल हियर द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म 0 to 100, तो दे गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इस पूरी सिचुएशन को पहले डिस्क्रीट फॉर्म में लेके जाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू देयर एंड देन विल गेट बैक टू द कॉन्टिन्यूअस केस. ओके, तो डिस्क्रीट केस देखते हैं. नाउ सेम सिचुएशन है, सब कुछ सेम कहानी है, बट इंस्टेड ऑफ that they will draw V1 and V2 from uniform 0 to 100, I am saying that there is a set of numbers. For example, there is a urn जिसके अंदर ये ticket values है. Okay, let's take an example. And उसके अंदर tickets के ऊपर prices लिखे हुए हैं 0, 10, 20 and so on till 100. So both the players are simultaneously taking out one of the numbers. Okay, दोनों अपना अलग अलग ये काम कर रहे हैं, and then they will choose one of the two things. Either they want to swap or they want to retain. सब कुछ सेम है, दोनों ने swap करा, then they will exchange their initially drawn tickets, otherwise they will retain. Okay, now I have to find out कि ये swap कब करेंगे. Okay, let's begin. Okay, so
आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेयर 1. प्लेयर 1 मान लेते हैं कि उसको टिकट मिली 100 की वैल्यू. ओके, इफ v1 is equal to 100, now the question is, will player 1 choose swap? will he choose to swap? देखो ऑब्वियसली स्वैप करने का एक ही रीजन हो सकता है, एंड इट इज कि ही वांट्स टू गेट हायर वैल्यू. ओके, तो क्योंकि वो ऑलरेडी 100 पर है, देयर इज नो पॉइंट इन स्वैपिंग. या तो उसे दोबारा 100 मिल जाएगा अगर प्लेयर 2 के पास भी 100 हुआ. इफ v2 is equal to 100 after swapping, he will get 100 back. But if v2 is less than 100, okay, then in that case he will get lower value. So there is no point in swapping. 100 पर वो ऑलरेडी है, स्वैप करने के बाद वैल्यू कम ही हो सकती है, बढ़ नहीं सकती. ओके, सो सिंस ही वोंट गेट हायर वैल्यू, so he won't swap. So definitely he will choose retain, right? Now the thing is, दोनों प्लेयर्स सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं. ओके, दोनों की जो यूटिलिटी है दे आर सिमिलर, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज सिमेट्रिक. इफ आई इंटरचेंज v2 with v1, ठीक है, तो दोनों का यूटिलिटी फंक्शन एग्जैक्ट हो जाएगा. u1 will become u2 and u2 will become u1 if I interchange v2 and v1. तो जो ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, इट इज अ सिमेट्रिक सिचुएशन. ओके, सो आई कैन से दैट दीज प्लेयर्स आर सिमेट्रिक. प्लेयर्स आर सिमेट्रिक. तो वो सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग सिमिलर यूटिलिटी फंक्शंस, तो दैट मींस उनकी स्ट्रेटेजी भी फिर सिमिलर होगी. सो देयर स्ट्रेटेजी will be of similar form. ठीक है, तो सिमिलर स्ट्रेटेजी वो बनाएंगे. तो डेफिनेटली दोनों ही प्लेयर्स v1 जब v1 100 होगा तब प्लेयर 1 स्वैप नहीं करेगा, ही विल रिटेन. सिमिलरली जब v2, जब प्लेयर 2 के पास जो वैल्यू वो 100 होगी तो वो भी स्वैप नहीं करेगा, ही विल रिटेन. वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट बिकॉज दोनों की स्ट्रेटेजी विल बी ऑफ सिमिलर फॉर्म. ओके, तो मैं किसी एक प्लेयर के लिए देखूंगा, दूसरे प्लेयर के लिए वो अपने आप आ जाएगा. ऑलराइट, क्योंकि वो सिमेट्रिक है. नाउ व्हाट इफ v1 is equal to 90, and now again player 1 को हायर वैल्यू चाहिए. ओके, he wants 100. ऑलराइट, तो अगर उसे 100 चाहिए स्वैप करके, तो प्लेयर 2 के पास 100 होना चाहिए. अगर 100 उसके पास हुआ भी, वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि कोई भी प्लेयर 100 पर स्वैप नहीं करेगा, राइट? तो अगर वो 100 पर स्वैप नहीं करेगा, देन देयर इज नो पॉइंट इन स्वैपिंग एट 90. अगर स्वैप करके 100 नहीं मिल रहा है, कुछ या तो 90 वापस मिल जाएगा या 90 से कम मिलेगा, देन देयर इज नो पॉइंट इन स्वैपिंग, राइट? ही वांट्स टू गेट हायर वैल्यू, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग हायर वैल्यू बिकॉज प्लेयर 2 स्वैप नहीं करेगा. ओके, अगर उसके पास 100 हुआ तो 80 पर हो गया और उसने कर लिया तो हम लॉस में आ जाएंगे. अगर मैं प्लेयर 1 हूं तो मैं लॉस में आ जाऊंगा. तो डेफिनेटली 90 पर भी कोई भी प्लेयर स्वैप नहीं करेगा. ओके, तो यहां पर भी रिटेन होगा, राइट? तो वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड 100 हुआ तो भी प्लेयर रिटेन करेगा, 90 हुआ तो भी रिटेन करेगा, एंड द रीजन इज दे वोंट गेट हायर वैल्यू बाय स्वैपिंग. ओके, नाउ व्हाट अबाउट 80? if v1 is equal to 80, ठीक है, तो सिमिलरली आई कैन से जब कोई 90 पर और 100 पर स्वैप करने को रेडी ही नहीं है, राइट? तो देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग हायर वैल्यू व्हेन वी आर एट 80. ओके, so this thing will go on. okay, now when we are at 20, again 30 पर भी यही हुआ होगा. so no one is willing to swap till 30. now no one is willing to swap at 20 because 30 पर भी कोई स्वैप नहीं कर रहा था. अगर 30 और 30 से अबव पर कोई भी स्वैप नहीं कर रहा है, then there is no point in swapping at 20 because he won't get higher value. क्योंकि दूसरा प्लेयर तभी स्वैप कर रहा होगा जब उसके पास कम होगा इससे, राइट? तो 20 पर भी एक्सचेंज नहीं होगा, सिमिलरली 10 पर भी एक्सचेंज नहीं होगा. करते करते वी विल रीच एट v1 इक्वल टू 0. ओके, अब अगर स्वैप करोगे देयर इज अ चांस ऑफ हायर वैल्यू, या तो 0 वापस आ जाएगा या फिर उससे हायर आएगा, उससे लोअर नहीं हो सकता. सो प्लेयर विल स्वैप ओनली व्हेन v1 इज इक्वल टू 0. अदरवाइज वो हर केस में रिटेन करते जाएंगे. एंड आई एम सेइंग जाएंगे बिकॉज
सिमेट्रिक प्लेयर्स हैं, दे बोथ विल चूज स्वैप, strategy will be swap at 0 0. Okay, so they will exchange only when they will get 0 as value. Okay, so that's the Nash equilibrium in this case. Okay, now let me take it to you. Now let me take it to the continuous case. Okay, तो अब यहां पर प्लेयर्स कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे उसकी बात करते हैं. सो नाउ पहले हम बात कह रहे थे डिस्क्रीट केस में कि V1 और V2 दे बिलोंग टू 0 और 10 200. ओके, डिस्क्रीट केस था, इनमें से वो कोई भी उनके पास नंबर आ सकता था. ओके, नाउ वी आर सेइंग दैट V1 और V2 दोनों आ रहे हैं इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से फ्रॉम 0 to 100. ओके, नाउ आई एम गेटिंग बैक टू द कॉन्टिन्यूअस केस. देन व्हाट अबाउट द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर 1. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कि दोनों सिमेट्रिक हैं. ओके, तो दोनों की स्ट्रेटेजी भी सिमिलर होगी. नाउ इन दिस केस वैल्यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 100, राइट. तो एक पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है प्लेयर की, दैट ही माइट थिंक ऑफ अ कट ऑफ. ओके, ही माइट से कि लेट्स से देयर इज अ सी कट ऑफ, जिससे अगर कम मेरे पास वैल्यू हुई तो मैं एक्सचेंज कर लूंगा, अदरवाइज मैं स्वैप नहीं करूंगा. ओके, so the strategy can be for player 1 that he will swap if the value that he has got is less than or equal to this cutoff. ठीक है, this C is the cutoff. इससे कम हुआ तो स्वैप, अदरवाइज देखते हैं. तो उसने ये स्ट्रेटेजी बना ली है. Now looking at this strategy given player 1 strategy, given player 1 strategy, player 2 क्या करेगा. तो अब प्लेयर 2 को पता है कि प्लेयर 1 तभी करेगा तभी स्वैप करेगा when he is getting a number which is less than or equal to this cutoff C. Okay, then what should be the best response of player 2. अगर इस तरीके की स्ट्रेटेजी प्लेयर 1 खेलने वाला है, देन उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. देन ऑब्वियसली अगर उसकी खुद की वैल्यू, ओके, इफ द वैल्यू दैट इज drawn by player 2 is more than or equal to C, then there is no point in swapping, क्योंकि उसे पता है अगर स्वैप हो गया then he will definitely get less than C. अगर उसके पास already more than C है, then there is no point in swapping, so he won't swap. Okay, but what if उसके पास भी जो वैल्यू है वो भी लेस देन इक्वल टू सी, एंड मैं इक्वल के केस इंक्लूड कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस का केस है, सो इट डजंट मैटर. ओके, तो अगर उसके खुद के पास भी लेस देन और इक्वल टू सी आ गया, देन ही विल बी रेडी. ओके, तब वो स्वैप कर सकता है, बट स्टिल देयर इज अ सिचुएशन 0 100, दिस इज द कट ऑफ. दोनों अगर सी से कम है, लेट्स से यहां पर V1 है, यहां पर V2 है, अगर प्लेयर 2 ने स्वैप कर लिया, वो कम पर आ जाएगा, V2 V1 बन जाएगा, V1 कम है. ओके, सो सिंस ही डज नॉट नो, उसे अगर सिचुएशन ये है कि दोनों सी से कम है, बट स्टिल ही डज नॉट नो कि वो उसका जो वैल्यू है इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ प्लेयर 1, ओके, और मोर देन द वैल्यू ऑफ प्लेयर 1. ठीक है, तो फिर यहाँ पर कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन. ओके, सो क्योंकि V1 और V2 नहीं पता है, प्लेयर 2 को V1 नहीं पता और प्लेयर 1 को V2 नहीं पता. ओके, तो दैट इज द प्राइवेट इंफॉर्मेशन, दोनों को एक दूसरे की वैल्यू नहीं पता. तो यहाँ पर रोल आता है डिस्ट्रीब्यूशन का. हमें पता है कि V1 और V2 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से निकले. ओके, एंड वी ऑल्सो नो कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म A to B है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू उस केस में होती है A plus B by 2. ओके, नाउ वी नो that these value are between 0 and C in this case. Okay, in this case value is between 0 and C. तो player 2 यहाँ पर expected value क्या हो जाएगी. So situation is that uniform 0 to C. So in this case expected value will be 0 plus C by 2. तो player 2 बोलेगा that expected value in this case is C by 2
तो वो तभी एक्सचेंज करेगा जब उसकी खुद की वैल्यू इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम होगी। जब V2 यहां लाए करेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम कम होगा, तभी वो स्वैप करेगा। ओके, सो ही विल स्वैप व्हेन V2 इज लेस देन और इक्वल टू C/2। ओके, क्योंकि उसका हमें नहीं पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम वैल्यू आई होगी प्लेयर 2 के पास, ओनली देन ही विल स्वैप, अदरवाइज ही वॉन्ट स्वैप। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि C कितना होना चाहिए। ओके, बिकॉज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट players will exchange their initially drawn numbers. Okay, so for that I need कि वो कट ऑफ कितनी है, so I need to find that cutoff. So what is that cutoff? So let me say, let's begin with 50. What about 50? Can C be 50? तो अगर प्लेयर 1 ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो स्वैप करेगा जब उसे लेस देन और इक्वल टू 50 मिलेगा, देन प्लेयर 2 इज सेइंग कि मैं फिर तब स्वैप करूंगा व्हेन आई विल गेट लेस देन 50/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 25। ओके, अगर कट ऑफ 50 है, प्लेयर 2 कह रहा है मैं तब करूंगा जब लेस देन 25 मिलेगा। नाउ प्लेयर 1 नोस कि अब वो 25 से कम में करेगा, देन ही विल, अब दोनों की स्ट्रेटजी सिमिलर है, ठीक है, इट इज अ सिमिलर फॉर्म, देन ही विल से कि मैं तब करूंगा जब 25/2 से कम होगा, विच इज 12.5। ओके, नाउ लुकिंग एट दिस, प्लेयर 2 विल से कि अब मैं तब स्वैप करूंगा व्हेन आई विल गेट 12.5/2, which is equal to 6.25, and this situation will go on. Okay, 20, 50, 25, okay, 12.5, 6.25 and so on. Okay, ये situation चलती रहेगी and ultimately this will go to 0. Okay, so दोनों तभी exchange करेंगे when they will have value 0, otherwise they won't swap. Okay, so in this case ऑब्वियसली जब दोनों को लीस्ट, जब दोनों अपनी लीस्ट वैल्यू पर होंगे, ओनली देन दे विल एक्सचेंज, ओनली देन दे विल स्वैप। ओके, सो दैट्स द Nash equilibrium. All right, now this is not the question. The question is what is the probability of this, of what is the probability that both will swap. Okay, तो दोनों स्वैप कब कर रहे हैं, जब दोनों को 0 0 वैल्यू मिलेगी, when V1 is equal to 0, V2 is equal to 0, and we know that it is from uniform 0 to 100. So what is the probability that they will get exactly 0? Continuous distribution है, तो इस चीज की probability हो जाती है 0. Okay, so answer is D. Probability that players will exchange their initially drawn numbers is 0. Okay, तो next thing is let me explain you कि ये Nash equilibrium हुआ कैसे, ठीक है। So ये जो केस आया है that they will swap at 0 0, they both will swap and the swap will take place. Okay, क्योंकि swap तभी होगा जब दोनों swap choose करेंगे, तो swapping will take place then they both, when they both have 0 values. Okay, so that's the Nash equilibrium. But यही Nash क्यों है? One thing is rationality के assumption at the back चल रही है. Okay, rationality. Now you might say कि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा यही हो. वी आर नॉट सेइंग कि हमेशा ऐसे होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट Nash equilibrium. व्हाट आई मीन टू से इज, लेट्स से इन दिस सिचुएशन आपके पास 10 है, आपके फ्रेंड के पास 40 है. ओके, एंड यू माइट बी विलिंग टू एक्सचेंज. यू माइट थिंक कि अगर उसके पास ज्यादा हुआ तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, एंड यू आर स्वैपिंग एट 10. दैट माइट बी द केस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हो कुछ भी सकता है. वी आर टॉकिंग अबाउट Nash equilibrium. कि Nash equilibrium कौन सा है. ओके, सो फॉर दैट वन assumption is कि rationality है. ओके, दोनों ऐसे ही बाय चांस नहीं चूज कर रहे हैं. दे आर नॉट सेइंग कि अच्छा मैं 20 पे कर लूं या 30 पे. दे आर नॉट गेसिंग. ओके, देयर इज रैशनैलिटी गोइंग ऑन. एंड दूसरा वी आर टॉकिंग अबाउट Nash equilibrium. तो Nash equilibrium अप्लाई करने के लिए उसकी डेफिनेशन समझते हैं. सो Nash equilibrium उस स्ट्रेटेजी पर होता है when there is no incentive for players to deviate from their initial strategy. Nash equilibrium मैंने क्या बोला, क्या है? Swap happens at 0 0. Okay, मैं कह रहा हूं तभी swap होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो क्या ये Nash है? What if
द सिचुएशन इज 10-20। तो मैं अब कह रहा हूं कि क्या यहां पर स्वैप स्वैप हो सकता है? ओके, मैं अपनी मैं अपनी स्ट्रेटेजी को डेविएट करके देख रहा हूं कि क्या यहां पर स्वैप करना चाहिए। ओके, लेट मी टेक इट टू बी 0। ऑलराइट, प्लेयर 2 तभी स्वैप कर रहा है जब उसे 0 मिल रहा है। ओके, मैं भी तभी स्वैप कर रहा हूं जब 0 मिल रहा है। व्हाट इफ सिचुएशन मैं चेंज कर रहा हूं कि वो तभी स्वैप कर रहा है जब 0 मिल रहा है, क्या मैं 10 पर भी स्वैप कर सकता हूं? ठीक है, इज दिस नैश इक्विलिब्रियम? दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटेजी सेम रखी हुई है मैंने, वो अभी भी तभी स्वैप कर रहा है जब उसको 0 मिल रहा है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूं। आई एम सेइंग कि व्हाट इफ मैं 0 की जगह 10 पर भी स्वैप चूज कर लूं, तो इज इट अ नैश इक्विलिब्रियम? ओके, इज देयर एनी इंसेंटिव टू डू दैट? नाउ द थिंग इज, अगर वो तभी स्वैप कर रहा है जब उसके पास 0 है और मैं 10 पर स्वैप करने लग जाऊं, देन आई विल गेट 0। देयर इज नो इंसेंटिव, यहां पर उल्टा लॉस हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा 20 पर करना चाहूंगा? ऑब्वियसली नॉट, मुझे 0 मिलेगा क्योंकि वो प्लेयर तभी स्वैप कर रहा है जब उसे 0 मिल रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं, क्योंकि प्लेयर सिमेट्रिक है, सेम थिंग होल्ड फॉर प्लेयर 2। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ Nash equilibrium, this strategy that they will swap at 0-0 is Nash. Okay, रैशनैलिटी है और Nash equilibrium की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, दैट इज द रीजन कि दे विल स्वैप ओनली व्हेन v1 एंड v2 आर बोथ 0। ओके, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है। you might be willing to do at 10, you might be willing to do at 20, but that is not the point. Point is कि Nash क्या है? Okay, Nash है swap at 0-0. Okay, I hope you get it.